एक होता है चीजें अनाउंस करना और दूसरा होता है उसको राइट लोगों के पास लेके जाना. सो इवन दो यू हैड अ ग्रेट आइडिया, यू हैड अ great concept, are not at right place, not showcased at right place, and not executed in that ecosystem made you fail. क्या अगर मैं आपको फंड कर रहा हूं तो आपको फंड यूज करने की अकल भी है? Are you educated enough? And failures are not always about failing down to the bottom. आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आप क्या खरीदो, आप कैसे खरीदो. There is no quick success. That's why these startups are failing. Hello, everyone, and welcome to today's episode. I'm your host, Mohit Manghani. The startup game is changing. Investors are sharper, founders are faster, and the market moves in seconds. In this episode, we decode what it takes to survive, scale, and truly stand out in today's ecosystem. And to help us understand it better, we are joined by the man driving that change, with Dr. Ashutosh Khatavkar. Doctor, thank you so much for joining us. Thank you so much. Pleasure being here. Dr. Ashutosh, you have studied business strategy and economics for years. In fact, you hold a PhD in economics. Yes. Tell me, how has that knowledge shaped your journey as an entrepreneur? I was never an entrepreneur till few years back. I was always into jobs. बहुत अच्छे developers के साथ काम किया. I come from a real estate background. So I got to work with developers like Lodha developers. And I was a part of the team when the company was shaping up and the brand was made. Then I got chance to work with Bombay Dyeing, Bombay Realty, the real estate arm of Bombay Dyeing. So got to work with the best and got to learn a lot from them. Understood how brands work. उसके अलावा my core expertise and my research is in neuromarketing and behavioral economics. ये बहुत unique combination है because economics, the way it was earlier, is now changed. Economics एक जमाने में was a very finite game. A finite and infinite is finite मतलब जब आपका गेम रूल्स से चलता है और infinite मतलब आपके गेम को कोई रूल्स नहीं है. So economics was always a finite game, but now it has become infinite. तो आपका अभी behavior economy drive करता है. छोटा एग्जांपल देता हूँ. आप एक बेल्ट खरीदते हो. एक नॉर्मल बेल्ट आपको 800 से 1000 रुपए में आती है. काम क्या है बेल्ट का? पतलून पकड़ना. और तो कोई काम नहीं है, राइट? बट जब आप एक कोई बड़ी ब्रांड का बेल्ट है तो इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपया है. काम तो वही है, पतलून पकड़ रहा है. बट लेकिन द आइडिया इज नो मोर टू होल्ड अ ब्रांड. आइडिया इज टू शो दैट यू गॉट अ ब्रांड. Show this. So the primary requirement or the primary utility of that belt is changed now from being holding a brand to a show off. ये इकोनॉमी जो ड्राइव हुई तो वो बेल्ट जो 1.5 लाख का है उसमें से 3,000 रुपए अभी भी पतलून पकड़ने के हैं. 1,47,000 शो ऑफ के. तो ये 147 बिहेवियर ने इकोनॉमी को पुश किया. इट्स अ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. या मैं कोई अगर कोई प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है और वो प्रोडक्ट आपको पुश करता हूँ, आपको पता ही नहीं प्रोडक्ट होता है, बट सिंस द वर्ल्ड इज सो ऑन टू सोशल मीडिया और आप देखते हो कि ये चीज अवेलेबल है एंड यू फील कि अरे मेरे पास भी होना चाहिए. जरूरत तो थी नहीं. सो टेक्निकली देयर इज नो डिमांड बट द आर्टिफिशियल डिमांड इज बीन इन्फ्यूज्ड. उसको बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. और दूसरा होता है न्यूरो मार्केटिंग. न्यूरो मार्केटिंग मतलब इट्स इन अ वेरी बैड लैंग्वेज आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आप क्या खरीदो, आप कैसे खरीदो, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है एंड इट क्रिएट्स अ वेरी लीथल वेपन फॉर मार्केटिंग. एक मस्त एग्जांपल देता हूं आपको. जब इकोनॉमी बुरी हुई थी, जब इकोनॉमी खराब हुई थी, तो लोगों को लगा कि यार ये सारी चीजें बिकना बंद हो जाएगी. हाँ, बट यू विल बी सरप्राइज्ड एंड देयर इज अ डेटा टू प्रूव दिस कि people had cut down buying on undergarments, but lipstick sale was still up. This is a fact. Okay. This is a fact because people believed कि जो चीज दिखती है, जो इनविजिबल, तो लोगों ने जो इकोनॉमी पे कट डाउन किया दैट वाज ऑन इनविजिबल थिंग्स. विजिबल चीजें अभी भी बिक रही थी. फैशन में कट डाउन नहीं. फैशन में कट डाउन बिकॉज लिपस्टिक दिखती है. आपके अंडरगारमेंट्स दिखते नहीं थी. शायद आपके बनियान में एक छेद चल जाए. सो इकोनॉमी बिहेव्स इरेडिकली. You can kind of see how it is moving. That's what is behavioral economics. Do you know, you rightly said so, because we are living in that world. Absolutely. Social media can quickly give you FOMO. This concert is happening, you did not attend, everybody posted this, I think I should have attended it. Absolutely. मतलब अभी आपके रेस्टोरेंट्स इसलिए भरे नहीं होते बिकॉज खाना अच्छा है, बिकॉज वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, शायद मैं अच्छा फोटो खींच पाऊँ. या आपको उसको सोशल मीडिया पे इसलिए डालने बिकॉज आपका पेट भरा, आपको दिखाने के मैं तो इस जगह पे विजिट करता हूँ. तो दैट्स अ डिफरेंस.
That's how economics, and this is then eventually has helped me in my journey of being in real estate, और उसके बाद now startup guru. So this is how the things have moved. This is gave me a clear understanding how the market works, how people think. Because when I came to neuromarketing, it's a deep study of how thought process works. And if that I can kind of amalgamate with economics, it's a lethal combination. And God's grace, I got those exposures. I've got gurus like Mr. Rajaram Karthik, who was my CMO in Lodha. I've learned a lot from these people. I've got best mentors in life, जिनसे मुझे बहुत सिखाया, and it helped me a lot. But you know, Ashutosh sir, now when I hear you, I understand what was the catalyst behind Startup Guru. But tell me, what problem are you trying to solve through this platform? Very, very basic problems. So startup मतलब एक हो गया आज के तारीख में कि people understand कि मुझे एक बिजनेस चालू करना है. Everyone wants to be entrepreneur. मतलब आप स्क्रॉल करते हो, आपको इलॉन मस्क दिखते हैं, हमको सुबह उठ के लगता है कि आज के इलॉन मस्क तो हम ही है बाबा. तो नाउ व्हेन यू डू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ स्टार्टअप या कोई स्टार्टअप चालू करना या कोई बिजनेस को एक्सपांड करना शायद इतना आसान नहीं रहा. Because the competition in the market has become more knowledgeable, more aware about what's happening around them. एक जमाने में आप कोई भी एक बिजनेस करते थे, वो आपको लोगों तक पहुंचाना तकलीफ थी. तो जब आप लोगों तक पहुंच सकते, उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है. आप since the market is now evolved, social media and the awareness online has gone so up that people know what to expect from you, and their ideas of what money they are paying, now they are looking for value. अभी उनको कोई ये नहीं है कि हमको यही चाहिए, अब वो वैल्यू ढूंढते हैं उसमें. अब वो वैल्यू, आप वैल्यू देख लीजिए, टैंजिबल वैल्यू, इनटैंजिबल वैल्यू, उनको वैल्यू चाहिए. एक आपने आपने एक न्यूज पढ़ी थी कि नहीं, कि एक पेरिस में एक बंदे ने एक इनविजिबल आर्टिफैक्ट बेचा है. ही इज अ वेरी वेरी बिग क्रिएटर फ्रॉम पेरिस हु हैज सोल्ड इन. आप गूगल कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा. उस बक्से में सिर्फ एक लाइट है और वो बोलते हैं इसमें मेरा आर्ट है जो इनविजिबल है, और वो 18.5 लाख में बिका है. तो ये परसीव्ड वैल्यू है. और स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज के तारीख में लोग जब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स ले भी जा रहे हैं, क्या होता है ना मोहित, कि एक इकोसिस्टम होता है कोई भी बिजनेस थ्राइव करने का. आज अगर मैं रियल एस्टेट में हूं तो आई एम मोर इनटू मैनेजमेंट. मुझे आज भी शायद नहीं पता कि रेती में सीमेंट कितना गिरता है. सो अगर मेरे पास एक आइडिया है तो मुझे उसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए जो उस आइडिया को सपोर्ट करे. और आज के तारीख में वो इकोसिस्टम मिसिंग है. यू विल बी सरप्राइज्ड, इस साल 2025 में एज पर द डेटा अवेलेबल 11,300 स्टार्टअप्स बंद हुए इंडिया में. I read this somewhere. The number of failures. It was in a newspaper. क्यों? And that is 28% higher than the last year. अभी जरूरी ये नहीं है कि या वो आइडिया खराब था या उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिला, कि आपके पास वो इकोसिस्टम थी कि उसमें वो आइडिया थ्राइव कर सके. जोशुआ बेल करके एक बहुत बड़ा वायलिनिस्ट था. ओके, एंड दिस गाय इज रिनाउंड, लाइक यानियन उस लेवल का ये बंदा वायलिनिस्ट था. उसने खुद को डिस्गाइज किया. ये रोनाल्डो का भी एक स्टोरी था, आपने सुना होगा. खुद को डिस्गाइज किया और वो रास्ते पे खड़ा रह के ही वाज प्लेइंग वायलिन. ही वाज प्लेइंग बेस्ट ऑफ द मास्टरपीसेस. एंड प्रोबेबली thousands of people walked by, hardly few gave him $1. Nobody knew it. And third day of that thing, what he did, he had a big concert where people paid $100 just for a 1-hour concert. The takeaway from this is, शायद वायलिनिस्ट वो, वायलिन भी वो, आर्ट भी वो, बट सही जगह पे ना होने से उसकी वैल्यू गिर गई. So even though you had a great idea, you had a great concept, are not at right place, not showcased at right place, and not executed in that ecosystem, made you failed. That is the biggest problem. That's why these startups are failing. And most of them are also failing because शायद उनके पास proper funding नहीं है, proper guide करने वाला कोई नहीं है. So in today's world, ये बहुत important है कि आप सिर्फ startup मत दीजिए, आप उसको एक ecosystem दीजिए. आप
जब किसी की आइडिया आप यूज करते हैं या किसी के आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट करना, उसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए. देयर विद दैट आइडिया केम दैट व्हाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां आप सिर्फ स्टार्टअप्स को लेके ना आए, बट उनको बोलिए कि उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है. उनको स्ट्रक्चर करके दीजिए उसको, ताकि उन स्ट्रक्चर में लोगों को पता चले कि इज इट इवन डूएबल. एक होता है अ ग्रेट आइडिया और एक होता है एग्जीक्यूटेबल आइडिया. मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया कि मैं यहाँ से उड़ के फ्रांस जा सकता हूँ. क्या मैं उड़ सकता हूँ? आइडिया तो अच्छी है, प्लेन की जरूरत है, उड़ के फ्रांस चला जाऊंगा. राइट. उड़ सकता हूँ क्या? नहीं. तो हैविंग एन आइडिया इज अ ग्रेट थिंग. कैन समवन इवेल्युएट कि वो आइडिया यूज भी हो सकती है? और बहुत सारे स्टार्टअप तो शायद पता भी नहीं है, इसलिए स्टार्टअप्स फेल होता है. You know, this is a very powerful reminder because you have to be at the right place at the right time. Absolutely. Everybody has an idea, but the gap between ideation and execution, I think that is missing. Absolutely. In fact, you know, when you were telling me this, I could recall जब हमारे father, बड़े लोग जब business करते थे 80s, 70s, the market was different. Absolutely. Everything was like, you know, ज़बान पे चलता था. People used to trust each other. Now the competition is there. Everything is available. Resources are there, but still it's collapsing. You know, tell me one thing, because now we also see government giving all those support incentives and everything. How do you think, what kind of shifts do Indian economy or say the startup ecosystem needs to make to truly support MSMEs in the long run? अपने पास ब्रिटिशर्स आए थे, पता है मुझे, जब अपने ऊपर राज करते, और ये ब्रिटिशर्स ना कोबरा से बड़े डरते थे. ओके, सॉरी यार, प्रोफेसर हूँ तो कहानियां सुनाने की आदत है. सो वो कोबरा से बहुत डरते थे. तो उन्होंने एक स्कीम फ्लोट की कि यार तभी आनाज होते थे, रुपए के पहले आना. आई डोंट नो इफ यू नो आना है. पैसा आना, पैसे के पहले भी आना होता था. ओके, तो उन्होंने बोला कि जो भी बंदा एक कोबरा मार के लाएगा, उसको हम 1 आना देंगे, 10 आना देंगे. अब इंडियंस बिंग इंडियंस जुगाड़ू, तो लोगों ने कोबरास मारना चालू कर दिए. जब कोबरास मारना चालू करते तो लोगों को पैसे मिलने लगे, तो लोगों ने घर में कोबरा ब्रीड करना चालू कर दिया. पहले ब्रीड करेंगे, फिर उसको लेके जाके अंग्रेजों को दिखाते थे और उससे पैसे लेते थे. कुछ सालों तक चला. फिर जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने ये स्कीम बंद कर दी. अब आउटकम क्या? घर में तो ब्रीडिंग चालू था, तो लोगों ने उठाकर कोबरा रास्ते पे छोड़ दिए. आउटकम ये हुआ कि पहले जहाँ 10 कोबरा थे, उसके बाद 100 कोबरा रास्ते पे आ गए. बढ़ गया. सो द स्कीम विच वॉज फ्लॉन्टेड टू किल कोबरास एक्चुअली किल्ड, गॉट मोर कोबरास ऑन द स्ट्रीट. So, क्या होता है कि when you come up with government schemes, when you come up with incentives for people, are they been reaching the right people? Yes. ये बहुत important है. As for government data, again, 1 in 15 have access to this idea, and that's available on a public domain. Wow. Okay. Most of the startup fail because शायद funding मिल जाती है, लेकिन वो कोई educate नहीं करता है. So that's a second problem. शायद government चाहता है, and I admire our government. Narendra Modi ji for making India dream, but at ground level the facts and realities are very different. और शायद आपके, and you'll be surprised Mohit, कि 97% of Indians have mobile. It's the only device which has reached 97% people. 97% मतलब फैमिली में एक मोबाइल है. और इंडिविजुअल्स आप करोगे तो 86% इंडिविजुअल्स के पास मोबाइल्स है. साइकिल 41% है. Okay, so when this mobile penetration was so high, advantages बहुत सारे प्राइवेट फंडिंग लोगों ने भी उठाए, जिन्होंने, आपको भी अगेन सुन के सरप्राइज होगा कि ये लोन ऑन एप्स आर अवेलेबल बिटवीन 13 to 40% पर ईयर. लोग इस रेट पे पैसा ले रहे हैं. क्या इनके पास वो गवर्नमेंट एक्सेस है? इनको पता नहीं कि गवर्नमेंट भी पैसे देती है लोन्स के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए? नहीं पता. सो एक होता है चीजें अनाउंस करना, और दूसरा होता है उसको राइट लोगों के पास लेके जाना. दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर. When I say infrastructure, Mohit, there are 2 kind of infrastructure. One is tangible, one is intangible. एक तो आपके ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, रास्ते, ये. एक होता है intangible infrastructure. क्या अगर मैं आपको फंड कर रहा हूं तो आपको फंड यूज करने की अकल भी है? Are you educated enough to use that fund? Are you? So हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम की तरह है. सो अगर आप किसी को फंडिंग दे भी रहे हो, तो उस स्टार्टअप के लिए वो बंदे के पास सिर्फ एक आइडिया, उसका इकोसिस्टम का है जो उसको सपोर्ट करे उसको ग्रो करने के लिए. वो बहुत जरूरी है. सो आई एडमायर वॉट एवर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. यस, वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट एज अ कंट्री, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस.
which will help the ideas or the small businesses to thrive. It's like that phrase, don't give me a fish, teach me how to fish so I can feed myself. एक उससे भी अच्छी कहावत थी कि आप घोड़े को पानी के पास ले जाओगे तो बाकी तो घोड़ा करेगा ना, ऐसा मुझे किसी ने कहा था जब मैंने पूछा था। मैंने बोला क्यों ले जा रहा है, तू घोड़े को प्यासा कर, वो अपने आप पानी ढूंढ लेगा। इफ यू कैन मेक हिम थर्स्टी ही विल फाइंड हिज वाटर। आपको वहां तक ले जाने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको प्यास ला, अगर उसको प्यासी लगी नहीं और उसको पानी का ले भी जाओगे तो क्या ही पिएगा। No, that's very interesting that you say this, because this brings us to something equally important, the human side of entrepreneurship, mindset. So in your opinion, that you have now experienced and you have had so many experiences with people from different verticals, what kind of mindset should founders and small business owners should have to stay resilient in today's competitive market? Rome was not built in a day. One has to understand that. There is no quick success. आज के तारीख में और एक सरप्राइजिंग, मैं किसी स्टार्टअप से बात कर रहा था, पीपल स्टार्टेड रजिस्टरिंग ऑन आवर ऐप स्टार्टअप गुरु, और मैं किसी स्टार्टअप से बात कर रहा था, उन्होंने शुरू करके 3 महीने हो गए थे, 2 बार किसी और से भी फंड लिया, तीसरे बार हमारे ऐप पे आए थे, तो माय टीम टोल्ड मी कि सर एक बार बात कर लीजिए। तो आई वाज स्पीकिंग टू दिस जेंटलमैन एंड व्हेन आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, तो बंदा अपना सब छोड़ छाड़ के इस आइडिया के पीछे लग गया। आपका कोई भी आइडिया या आपका कोई भी छोटा बिजनेस आपको डे 1 से पैसे नहीं देगा, शायद आपका इन्वेस्टमेंट, आपका उसको ग्रो करने में टाइम जाएगा। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इट टेक्स 36 मंथ्स फॉर अ बिजनेस टू एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग स्टेबल। 36 मंथ्स इज व्हाट दे से। बट मैं नहीं बोलता कि शायद आपको पैसे 36 मंथ्स आएंगे, उसके पहले आना चालू हो जाए, लेकिन यू नीड टू हैव योर फाइनेंशियल बैकअप, बिकॉज योर स्टार्टअप, योर आइडिया गेटिंग फंडिंग, देन यू गोइंग डाउन टू दैट लेन, देन यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द बिजनेस विल ग्रो, वो बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस कि आपका, अगर आप बोलोगे कि मैंने आज स्टार्टअप किया, कल से मेरी घर की रोजी रोटी बंद है, तो स्टार्टअप बंद होना वाजिब है। मतलब यू विल हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि यार वो हो भी क्या रहा है, मतलब वो फिर फ्रस्ट्रेट होता है, घर में तो पैसे नहीं आ रहे, मैं क्यों ही कर। दूसरा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका एमएससी में आपका स्टार्टअप, आप जो बिजनेस कर रहे हो, उसका प्रैक्टिकल स्केलेबिलिटी कितना है, स्केलेबिलिटी कितना है। आप अगर कोई प्रोडक्ट ले जा रहे हो, अगर वो यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, तो मतलब कोई और भी बना रहा है, मतलब आप तो पहले जाके उसके मार्केट पे कैनिबलाइज करोगे। इट्स अ क्लटर ऑलरेडी देयर। सो आपको पता करना है कि आपके पास ऐसा क्या अलग वैल्यू ऐड है कि जो मैं अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड छोड़ के आपके पास हूं, क्यों आऊंगा मैं? अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड की टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, आप बोलोगे यार मैं लेके आऊं बिकॉज आई एम मोहित एंड आई एम गुड लुकिंग, सो टेक माई पेस्ट, नहीं लेगा कोई बॉस, तुम ही यूज करो। Okay, so why would I come to you? So the idea is कि when you take your product, you need to understand the marketing concept of it. आप बना के उसको घर में थोड़ी कंज्यूम करोगे, और आपका मार्केट कंजम्पशन कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट कांट हैपन कि आप बोलोगे कि एक प्रोडक्ट बना दिया। व्हाट इज योर फेवरेट डिश? मुझे आप क्या खाना पसंद करते हो? आलू पराठा। लव का आलू पराठा। परफेक्ट, आलू पराठा आप खाते हो, लाइक। अब आप मुझे बताइए कि नाउ यू टेक इट टू द इंटीरियर्स ऑफ अफ्रीका एंड ट्राई एंड सेल दिस आलू पराठा। क्यों? वहां तो लोग मीट खाते हैं, अब आलू पराठा खिलाओ, अच्छी चीज है ना, आलू पराठा तो टेस्टी होता है, हाँ, बट दे डोंट हैव अ पैलेट फॉर दैट फैक्ट। सो आप क्या लेके कहाँ बेचने चाह रहे हो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। Scalability, like you said. नॉट स्केलेबिलिटी बट The absorption. Yeah. कौन एब्जॉर्ब करेगा उसको? आपका वो क्लाइंटल आपके आसपास है भी या नहीं? मेरे पास तो सॉलिड आइडियाज, बट मेरे पास कोई लेने वाला ही नहीं है वो आइडियाज को। It's like selling an umbrella in winters. Absolutely. Okay. दूसरा, आई डोंट नो, आप ड्राइव करते हैं? Yes. Perfect. You go on signals? You see those guys selling stuff on the roads? Yeah. Perfect. आपने नोटिस किया है दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी बेचते हैं? Mm-hmm. Are you sure? Yep. No. So I'll correct you. They're more organized than any one of us. I'll tell you how. आपने देखा है कि जब इंडिपेंडेंस आता है, उसके 4 दिन पहले वो फ्लैग्स इंट्रोड्यूस करता है। That is the only time I feel they are being organized. Apart from that, I'll tell you. 17 तारीख को बाद, 16 के बाद आपको फ्लैग्स बिकते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर बारिश के बराबर 1.5 महीना पहले वो लोग अम्ब्रेला बेचना चालू करते हैं। बारिश जैसी खत्म होती है, अम्ब्रेला वहां से हट जाता है। फिर रक्षाबंधन के वो आपकी रंग पंचमी के बराबर 2 दिन पहले पिचकारी आती है और कलर्स आते हैं, 3 दिन बाद वो कलर्स बंद हो जाते हैं। सो दे ऑल्सो नो देयर ऑडियंस की कौन कब क्या खरीदेगा।
अच्छा, दूसरा, दे हैव डन द प्राइस इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट. वो कोई भी प्रोडक्ट आपके पास 150 से 200 रुपए के ऊपर का लेके नहीं आएंगे. आपको कभी भी वो बंदा 800 रुपए का प्रोडक्ट बिकता हुआ दिखाई नहीं देगा. भले आपको कोट 600 करेगा, आप बार्गेन किसी आपको 150-200 के अंदर ही मिल जाएगा. सो ही हैज मैप्ड कि ये कंज्यूमर जो कार चला रहा है वो कितने का रिस्क ले सकता है. ये 150-200 का रिस्क लेगा, 800 रुपए का रिस्क नहीं लेगा रास्ते पे. नहीं. दूसरा, कन्वीनियंट क्या है, वो जीपे कर देगा, जब अपना स्कैनर लेके घूमता है, वो कैश लेता है. 200 रुपए आपके पास इजीली मिल जाएंगे. 2000 की चीज आप कैश में नहीं लोगे, ना ही आप स्कैनर से या आप कोई यूपीआई से खरीदोगे. सो इमेजिन द गाय हु इज सिटिंग ऑन द स्ट्रीट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. व्हाई कांट द स्मॉल एमएससी बिजनेस स्टार्टअप्स भी, जिनको तो इतनी सारी चीजें मिलती है. और आप वो बंदे को देखिए, आप कोई बड़ी कंपनी में जाओगे और आप बोलोगे यार मुझे ना 10%, मैं इफ आई गो टू आई वर्क विद लॉट ऑफ डेवलपर्स, सो ऐसे सर 10% डिस्काउंट देना है. बोलता है नहीं नहीं 10% डिस्काउंट अलाउड नहीं है. अब वो रास्ते का बच्चा को खड़े 25% डिस्काउंट दे देगा. सी द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस. Right there. Right, the lelo, because he will not lose an opportunity. So these founders, these startup people need to understand this market dynamics. They need to understand कि यार क्या बिकेगा, कब बिकेगा, कौन लेगा, परचेसिंग पावर क्या है. लुई विटॉन अपना स्टोर नासिक में शायद नहीं खोलेगा या धुलिये में जाके शायद नहीं खोलेगा. क्यों? बिकॉज though people may have been educated there, but the purchase power is still not gone that the Mumbaiites will sell it. So it's a great product. It's a great product. Right. But would someone do it? So the question is that, Mohit, कि ये जो founders, ये जो MSMEs, ये जो उनको समझना चाहिए मार्केट. और दूसरा एब्जॉर्प्शन. एक गांव में 20 लोग आलू पराठे खाते हैं, मैंने 100 बनाया. डिमांड सप्लाई पर हो गया. बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई. सो वो ये सारी चीजें बहुत समझना जरूरी है कि हाउ दैट विल एब्जॉर्ब, हु विल ईट, स्केलेबिलिटी क्या है, इसको क्या लगने वाला है, कंपटीशन कौन है, कंपटीशन क्या है, रेट पे बेच रहा है. अच्छा, आज अगर मैं बिजनेस बना रहा हूँ, क्या मैं इसको स्केल अप कर सकता हूँ? बिकॉज इवेंचुअली मैं 10 पराठे इसी दिन के नहीं बेच रहा था, मेरा आइडिया तो 100 पराठे बेचने का है. तो 100 पराठे के लिए रिवर्स मैथमेटिक्स क्या है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है कि मेरा रिवर्स मैकेनिज्म क्या है आपके पास पहुंचने का. एक तो आप 10 लोग मिलके 10 खाओगे. अच्छा, मैंने तो 100 बनाए, अब मैं बाकी 90, या तो मैं आपका एपिटाइट बढ़ा के आपको 1.5 खिलवा के मेरे 5 और बिक जाए. सो व्हाट इज दैट आई नीड टू डू? सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग विच विल गो इनटू दिस की न्यूरोलॉजिकली. और फिर मैं नए मार्केट्स क्या जा सकता हूँ. अभी मैं पराठे बना रहा हूँ तो मैं बॉम्बे में बैठा, तो क्या इसको लेके मैं दिल्ली जा नहीं, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, खराब हो जाएगा. सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर अ वेरी यंग जनरेशन, we start and then we don't realize and then we eventually fail. There were the problems. That is so rightly said, because first of all, thank you for giving me such a refreshing perspective. Now when I see all those people on the signal, I understand, boss, they have a bigger, smarter marketing sense than a lot of people out there. Absolutely. But you rightly said about the younger generation, because बहुत सारे new लोग founders, new businesses खोलते हैं. And एक छोटी चीज होती है, एक बार या 2 बार fail हो गए. So they don't feel like, bouncing back. What is that one common observation if you have noticed, and what is that one, lesson that you would like to tell them? Okay, boss, this is what you need to keep in mind. Ek bar girna is probably not enough. Failure is not a failure, it's a data, Mohit. It's absolutely data. Or the biggest reason of failing or not able to grow is because we go back to the board when we fail. Let me ask you a question. I'm sure you did your 10th, you did your 12th, and you must have done with your flying colors. Okay. 10th के एग्जाम में जब अच्छे मार्क्स मिले थे तो मोहित ने क्या किया था? पार्टी की थी यार, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया. ओके. 10th में अच्छे मार्क्स थे, 12th में अच्छे मार्क्स थे. परफेक्ट. इट्स अ ट्रेंड, आई एम श्योर. ओके. सो जब 12th में अच्छे मार्क्स थे तो मोहित ने फिर 10th 12th में भी ठीक ठाक थे, तो मोहित ने फिर पार्टी की. हमें परफेक्ट है. But 10th में जब Mohit went on with the flying colors, did he go back to the board and write then what is right that he did to go with that flying colors? Because he only went back to the board when he failed. Why didn't Mohit go back to the board when he was successful, or what right or what worked? Why couldn't he replicate, copy or mimic the right things that he did? Yeah, probably where are the learnings from? अगर मुझे पता है कि मोहित रास्ते में जा रहा है और खड्डे में गिर रहा है, तो मैं खड्डे में गिर के थोड़ी देखूंगा गिर सकता हूँ कि नहीं. दैट्स अ डेटा फॉर वी किस रास्ते से नहीं चल रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल ऑनलाइन, एंड विथ योर चैट जीपीटी काइंड ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे.
why don't you guys work with data? There's a lot of study to be done before, and once you fail, there's a lot of data which is available. क्या करने से शायद होगा और क्या करने से मैं फेल हुआ. And eventually, if you see, Apple had gone bankrupt earlier. And the co-founders were thrown out of the company, which they eventually went and make Pixar, and then Pixar was again bought back by Apple. You know that, the story. Okay. So he failed. Elon Musk was probably bankrupt several times, and then today is Elon Musk. So failures is a part of life. मतलब आप बोलोगे यार मैं उठूंगा और सुबह first thing in the morning I'm going to be successful, नहीं होगा. And failures are not always about falling down to the bottom. Failures will be seen in everyday's life. Your deals will not be cracked. Your new customer will run away. Your few customers who you want to onboard will not come in. Competition. Those all are failures. But you just learn from them. Yeah. As I say, success is not overnight. Overnight. And then there is, I always tell people that get back to the board. Please write down what is that and how you failed. And study, speak to people, network well. There are a lot of people who will give you perspectives which you probably don't. Look at the perspective of the street vendors. Right. You didn't have that perspective. I gave you that perspective. किसी यार मोहित ऐसे भी होता है. आप जब उनको देखोगे तो आपको ये perspective भी आएगा. And these people need to be very, very clear what they want to achieve. आप goal set करो ना यार. आप major failures उसलिए तो हो रहे हैं. मतलब I always tell whenever I'm taking a lecture that if you want to go to Singapore, you need a plane. But if you want to go to Shani Singapore, you need a car. It's 50 kilometers away. You can take a plane, car to Singapore. Now you can take, car to plane to Shani Singapore. Why? Because you need to understand always that is something is faster is not needed. No. A plane is very faster than your car, but then it's not needed for the job. So don't over-equip yourself. समटाइम शायद हम ओवर थिंक कर लेते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, सब करना है एक ही रात में कर रहे हैं, नहीं होता है. एंड देयर वर मेजर फेलियर्स हैपन एंड पीपल नीड टू काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल पोर्शंस एंड टेक बेबी स्टेप्स. बिकॉज जब तक जैसे आप बिजनेस को समझ रहे हो, बोलना मत, मार्केट भी आपको समझना है. और आप एक सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हो. आप एक ओवरनाइट सक्सेसफुल मॉडल नहीं बना रहे. वो कहते हैं ना, everything that looks effortless takes a lot of effort behind. Absolutely. I think that's what it is. Absolutely. All right. Absolutely. You know, Dr. Ashutosh, after such refreshing insights, I want to talk about another aspect which I feel personally ChatGPT also cannot help us with. Funding part. That's a very hot topic among founders. So let's talk about that part of the journey. Tell me, like, what exactly investors are really looking for today when they decide to fund a startup? So I'll tell you how this idea of Startup Guru started. Okay. Being in real estate, I met a lot of developers. So एक developer दोस्त थे, उन्होंने बोला आशुतोष, real estate तो ठीक है चल रहा है, but we also need to diversify. I said क्या करना है? He said पता नहीं, कोई अच्छी आइडिया है तो बताइयो. You come from economics, तो लोगों से मिलता होता है, तो कुछ है तो बता. अपन एक 50 लाख से करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे. मैंने बोला ओके. फिर अगेन आई सिटिंग विद समवन इन अ कॉमन फोरम. उसने वापस उसी दोस्त ने टॉपिक निकाला, तो और दो दोस्तों ने भी बोला कि यार वी आर ऑल्सो इन रियल एस्टेट, कुछ है तो बताओ. देन इट क्लिक्ड कि यार लोगों के पास आइडियाज को फंड करने की एक व्हाट डू से, दे वांट टू फंड आइडियाज, दे वांट टू डाइवर्सिफाई. एंड देन आई प्रोएक्टिवली स्टार्टेड आस्किंग फ्यू डेवलपर फ्रेंड्स, फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट. मेरे एक दोस्त है, उनकी पिगमेंट्स की फैक्ट्री है, वो लोग कलर पिगमेंट्स बनाते हैं. मैंने पूछा यार राहुल, आर यू इनटू कुछ डाइवर्सिफाई करना है क्या? बोले हाँ करते हैं ना, 3-4 करोड़ रुपए तक पड़ा है, वी कैन डाइवर्सिफाई, आई कैन काइंड ऑफ बेट ऑन समथिंग विच इज गुड. बात करते करते यू विल बी सरप्राइज्ड, पहले 1.5 हफ्ते में 23 करोड़ की किटी जमा हो गई कि इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए. एंड आफ्टर अ मंथ व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू एवरीवन, फ्यू पीपल जॉइन, इट्स अ किटी ऑफ 132 crores. People are ready to invest. Okay. All they need is a right idea. आज के तारीख में समथिंग विच इज ओस्टेंशियल, जो बहुत दिखावा वाला हो, वो भी स्मार्ट है. अगर आज को कोई बंदा 2 करोड़ डालने की या 2 करोड़ इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है, वो बेवकूफ नहीं है. उसने वो उतने कमा चुका है, तभी तो 2 करोड़ की डाइवर्सिफिकेशन देख रहा है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीऑर्गेनाइज दिस बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स टू टेक दिस टू दिस इन्वेस्टर्स, जो शायद स्टार्टअप गुरु करता है, अदर देन जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म.
आज के तारीख में इन्वेस्टर्स देख रहे हैं एक सस्टेनेबल मॉडल, स्केलेबिलिटी चाहते हो कि बिजनेस ग्रो कैसे करे, दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, दे आर लुकिंग फॉर कि अगर कोई बिजनेस जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या उसका मार्केट रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, तो वो अपने हिसाब से उसको स्टडी करते हैं. यू विल बी सरप्राइज द काइंड ऑफ इनसाइट दिस इन्वेस्टर आस्क फॉर अ वेरी वेरी व्हाट इज इंट्रिग. दे वांट टू नो कि बिजनेसेस कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट. एक होता है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना और एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टर जो स्टेक्स लेते हैं. टू वेज ऑफ मनी इज कमिंग, वन इज डेट, अदर इज इक्विटी. डेट शायद ये लोग नहीं, बट इक्विटी बहुत अवेलेबल है. लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी आइडिया, कोई अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करे. बट आप मुझे बताइए, जैसे दिस फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी कि मैं एक 50 लाख से 1 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. उसने आशुतोष को पूछा, आशुतोष इज इन इकोनॉमिक्स, और किससे पूछता. सो आई फील देयर इज ए ह्यूज गैप between people who want to fund and people who need the funds. और बॉम्बे में तो शायद मोहित आप 4 फोन घुमा के यहाँ किसी से बात भी कर लो. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज क्या करेंगे? वहां तो एक्सपोजर भी नहीं है. वहाँ बिजनेस ज्यादा है. They want to and they want to diversify. वहाँ के बिजनेस स्केल अप हो सकते हैं. जैसे राजस्थान में अगर कोई कारागिरी कर रहा है, he is doing some kind of architecture, कारागिरी वर्क ऑन मार्बल. पंजाब में कोई फार्मर है जिसके पास कोई स्केल करने का तरीका है. Probably we have something in Kerala जहाँ we can probably do something on plantation. So इन लोगों के पास exposures का है शायद. और वो अगर आप देखोगे एक जनरल statistics of income tax की सबसे ज्यादा income tax कहाँ से पे होता है, तो महाराष्ट्र is the one which has got maximum billionaires. Okay. अभी there are tier 2 3 cities like Manipur. There are places like Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ तो फिर भी थोड़ा डेवलप है, बट मनी प्लेसेस लाइक मणिपुर, पहले आसाम, इन लोगों के पास ये कैसे पहुंचे? हाउ कैन दे हैव एन ऑडियंस टू दिस इन्वेस्टर्स? सो गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है. वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, बट इफ यू स्टिल सी we are still a growing nation, though we say we're a 4th largest economy because we have a huge population, so we're a 4th largest economy. That is it. That's a luck. I know. So when we want to give this investors this kind of opportunities, there need to be someone who need to scan this, evaluate this, and that's what investors are looking for. I guess someone who will do at least 80% of my work, evaluating, understanding a startup and getting it to me, where my headache becomes less. He does his due intelligence, understands the business. Pitch decks are uploaded. We study the pitch deck, which is uploaded on Startup Guru. We speak to these startups. We understand. And once we understand, then we take them to these investors. So it's like helping both the sides, the founders as well as investors. Both the sides. So investors now look at purely, sustainable investments. Investors look for safe investments. That goes without saying. And end of the day, how they can scale it. Day one profit उनको भी नहीं चाहिए, उनको भी समझता है कि it takes time. But they'll look at long run, what would this business get? Right. How can this be scaled up to the level that their returns are assured? This is what they look at. Because, I rightly agree, coming from a tier 2 city like Indore myself, a lot of traditional business people now, the family has grown, now the youngsters are taking over, and they want to make a difference. We don't want to continue doing what we are doing. Let's diversify. But what to do? That's the first question. Then how to do? Finding the right people to collaborate. That is something I have personally noticed within my circle. Absolutely. So, now that Startup Guru is doing such, tell me, how do you see Startup Guru, making a difference in India's startup ecosystem in the near future? So, we want to create a platform where this tier 2, tier 3 cities, even for tier 1, people who have an idea can come up and showcase their ideas, or they have small businesses. So like I know there's this lady in Mumbai who used to bake amazing cakes, and eventually someone from her family circle, she was in Rajasthani Jain, so someone from Jain community fund gave her a first funding of 1 crore 33 lakh rupees. And today that brand is one of the top cake brands in Mumbai. So even though there is a talent, that talent, I always said, needs an ecosystem where there will be right funding, right guidance is needed. So Startup Guru kind of wants to create, we thrive to create. We are a very new app. We just launched a month back, and we have more than 200 plus investors who have joined in. We have got more than 16,000 startups and MSMEs who are registering with us. First month itself. We have got,
more than 6 lakh impressions a month on social media. And so what I feel is that Startup Guru wants to create that platform where it's ease for you to access these investors. These investors know that Startup Guru has done its own homework before onboarding the startups. And so do the startups or MSME knows that we have verified the investors and got them on the platform. And then once they connect, communicate, then probably they take it up on their own. But till the time we get them connected, till the time they marry each other, we are the people, involved. So we have our whole team which is working in backend, which does all evaluations of their profiles, understand the scalability. So if someone wanted to open a blood bank, we are trying to understand in that area how many hospitals are there, how many people probably, we spoke to some doctors there. And then now that blood bank is probably, I'm keeping my fingers crossed, could get a funding from someone in Mumbai. Within 1 month, we have a salon which the lady wanted. She's a doctor. And she also has a passion for styling. So now amalgamating both, she's trying to do a business where it will be a combination of salon and a derma products. Hand in hand. Hand in hand. Okay. And again, someone I knew, a developer is ready to fund her 1 crore rupee to buy these basic machines. So within first 1 month, keeping fingers crossed, if things go fine, we will have 2 fundings already rolled out to those people who are seeking funds. But yes, देखते हैं कैसे चलता है. But हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोगों को वो एक्सपोजर मिले. और शायद मिल जाएगा. 1 महीने में अगर हम 2 लोगों को फंडिंग अरेंज करके दे पा रहे हैं तो शायद अभी तो Sky is the limit. Sky is the limit. But yes, I'm sure tier 2, tier 3 के जितने भी लोग हैं जिनके पास आइडियाज है, छोटे बिजनेसेस है, वो अपने आप को स्टार्टअप गुरु पे लेके आएंगे. और मेरे पास ऑलरेडी 200 प्लस इन्वेस्टर्स हैं जो डालना चाहते हैं. सो राइट नाउ इस समय 132 करोड़ की किटी रेडी है. Wow. Everyone, they just need to download Startup Guru and reach out to us. Upload your business idea. आप क्या चाहते हो, एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दीजिए. जैसे फॉरेन शोज में होता है कि आप 4 इन्वेस्टर्स को अपना प्रोडक्ट बताते हैं. हाँ जी. हमारे यहाँ 200 लोग हैं, वो 4 लोगों के बदले. तो आपका चांसेस ऑफ हिट रेशियो आपका शायद ज्यादा हो जाता है. You're reaching out to the right person at the right time. और डे बाय डे इन्वेस्टर्स और ज्वाइन कर रहे हैं. So that's working great. No, I think you're being very modest because in the first month, if you're giving us this number, I think it would be fair to say Startup Guru has just started and has already hit the ball out of the park for me. Absolutely. But going further, all the very best with that. Thank you so much. Thank you so much. No, thanks to you for sharing your wisdom and reminding us that strategy is the real differentiator in the big game. Absolutely. सिर्फ बिजनेस आइडिया या छोटा बिजनेस होना इज नॉट एवरीथिंग. समझना कि क्या ये चल सकता है, समझना कि ये मार्केट में पेनिट्रेट हो सकता है, समझना कि इसको लेने वाला कौन है, हमारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये भी बहुत जरूरी है. I'm sure the readers and the listeners have a lot of takeaways from this. Absolutely. Thank you so much. Thank you once again. Thank you. I appreciate it. Thank you. That was Dr. Ashutosh on how vision turns venture. Thank you so much for tuning in. We'll see you in the next episode. Thank you.